स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Good evening, everyone. Welcome to this session on history question answer writing. This is part of your mains residential program, as you've been informed in yesterday's session as well as today also. Sir has informed you about this. Those students who will be continuing with us in this particular program shall be eligible for mains residential program, after the result as it comes out. So what we are aiming to do over here is, on a daily basis, we'll be engaging some sessions on different subjects, starting out with history first. We will first take up certain questions and discuss them in the class as to how you can approach that question. So you understand that every subject has its own nuance. The way you approach that subject, the way you introduce, the way you bring in content, how you conclude the answer, so on and so forth. And that is why we have dedicated special sessions for particular subjects of our syllabus. And to start out with, we are starting with history. The reason being, of course, it is a very important subject in your mains preparation. And over and above that, history is a subject about which we are relatively familiar, especially with modern India. So now that you are getting into the groove for mains examination, it makes sense to start with modern India first, so that you get set, and then you can take on the more difficult tasks like art and culture, world history, and also for that matter other subjects. So in today's sessions we are starting with history, modern India first. Before we actually get into taking up specific questions, I want to give you an overview regarding how answer writing is supposed to be done in the first place. Now, some of this idea, of course, you would be knowing in the first place, since some of you are already experienced candidates, but nevertheless, it is worthwhile to have a quick sort of a standard operating procedure regarding how you are supposed to tackle a question when you see it. So here we are going to discuss certain specific steps that you must employ when you write answers for all questions in GS, but history in particular. Okay, let us see some of these steps first. Step number one is scope of the question. Whenever you see a question, the first thing that you need to identify is the scope the question has defined. Now, what happens is when we see some questions, जब हम कोई सवाल देखते हैं तो उसमें कुछ familiar keywords होते हैं हमारे लिए, और वो कीवर्ड को देख करके हम we get excited, emotions take over, and we feel that I know this thing and I can write it very well, and we tend to write things which are not incorrect, but they are irrelevant to the demand of the question. So to avoid that, it is crucial that we first identify the scope that UPSC has given us in the question and stay limited to that scope only. कितना ही अच्छा हम कंटेंट लिख लें, लेकिन अगर वो स्कोप से बाहर चला जाता है तो वो आपको मार्क्स कभी फेच नहीं करेगा. इनफैक्ट इट्स अ डबल वैमी, क्योंकि ना नंबर मिले आपको, ना ही उसने उसने आपका टाइम भी वेस्ट कर दिया. इसलिए क्वेश्चन में सबसे पहले स्कोप को डिफाइन करना ये क्रूशियल होता है. ओके, वंस यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द स्कोप ऑफ द क्वेश्चन, then comes the second part of your answer writing, understanding what is the mandate that UPSC is giving in that question. अब मैंडेट का मतलब क्या है यहां पर में, आपने यूपीएससी के क्वेश्चंस में देखा होगा कि उसके अंदर में एक आपको डिमांड दी होती है स्टेटमेंट के साथ में. इसको अलग अलग टर्म से लोग रेफर करते हैं, कोई इसको टेल वर्ड कहता है, कोई कीवर्ड कहता है, हर एक अपना बोलने का तरीका होता है. आई कॉल इट मैंडेट क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है. यूपीएससी ने एक स्टेटमेंट दिया है आपको और एक जिम्मेदारी दी है कि इस स्टेटमेंट को इस तरीके से आपने टैकल या हैंडल करना है. अब अगर उस तरीके से आपने हैंडल नहीं किया तो क्वेश्चन की जो डिमांड है वो इफेक्टिवली जस्टिफाई नहीं हो पाती है. देयर आर सर्टेन mandate words that UPSC uses, and some of them are used for specific subjects in a specific way. इसलिए ये समझना जरूरी होता है कि किस mandate word को कैसे हमने हैंडल करना है. So in today's class, I will also try to cover that aspect regarding what are the mandates that are used in history. Based on previous year's questions, किस तरीके के mandates दिए जाते हैं, इसको भी हम briefly discuss करेंगे. This is the second part of answer writing. Third comes the very crucial aspect of answer writing, which is writing effective introduction. Introduction किसी भी आंसर का एक टोन सेट करता है आपके कंटेंट के लिए. ये एग्जामिनर को फेमिलियर बनाता है कि किस दिशा में, किस डायरेक्शन में आपके आंसर का कंटेंट जाने वाला है. It sets the bar high if you are able to write a very good and relevant apt sort of a introduction. अब सवाल ये पैदा होता है कि हिस्ट्री का जब क्वेश्चन है तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखना चाहिए. हर सब्जेक्ट के एक इंट्रोडक्शंस के लिए अपनी अपनी नुआंसेस हो सकती हैं. हिस्ट्री के लिए हम क्या कर सकते हैं,
हिस्ट्री के आंसर्स लिखते हुए इंट्रोडक्शन के अंदर में देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट वी कैन मेंशन. एक जेनरिक टेम्पलेट हम उसका बना सकते हैं. पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि उस क्वेश्चन के अंदर में ब्रॉड फोकल एरिया क्या है. ओके, जैसे मिसाल के तौर पर आपको एक सवाल पूछा गया है रिलेटेड टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर के बहुत अलग अलग डायमेंशन से सवाल पूछा जा सकता है. वो उसके हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेकर के सवाल पूछ सकता है, उसकी स्ट्रेटेजी और स्प्रेड को लेकर के पूछ सकता है. तो फाइनल नुआंसेस बहुत होंगी, लेकिन देयर इज वन ब्रॉड फोकल एरिया विच इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर के हम हमारा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट क्राफ्ट कर सकते हैं. ठीक है, स्टार्ट आउट विद दैट कोर फोकल एरिया एंड देन ब्रीफली मेंशन अबाउट द टाइम, स्पेस, पीपल इन्वॉल्व इन इट एंड लिंक इट्स यूएसपी टू द क्वेश्चन. ठीक है, फोकल एरिया को हमने आइडेंटिफाई किया, उसके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जैसे टाइम, स्पेस वगैरह, और फिर उसकी जो यूएसपी है उसको क्वेश्चन की डिमांड के साथ में हमने लिंक कर दी. तो एक सेंटेंस के अंदर में बड़ी आसानी से हम क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. दिस इज वन गुड वे ऑफ स्टार्टिंग हिस्ट्रीज आंसर्स. यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विथ सम कोट्स. You can collect several different quotes related to different topics of history, and then they can be weaved into your answer to make your answer more appealing, captivating. I will be giving you a series of quotes regarding history as well. Okay, कल मैंने ऐसे के सेशन में आपको quotes दिए थे. I hope you have reviewed those quotes. Many of those quotes can come in very handy to write conclusions of answers across general studies, many different subjects. Okay, so this is one way of introducing answers of history. Next is your content. Content is the king in your answer writing. Content आपका कितना दमदार है, असरदार है, इस पर आपके नंबर जो है वो डिसाइड होते हैं. Content आपका क्वेश्चन की डिमांड के साथ में रेलेवेंट होना चाहिए. It should not go outside the scope of the question. Okay? So how will you do that? मेंस का चैलेंज ये है कि आपको 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं इन द गिवन टाइम. If you work out the mathematics, it comes down to 7 minutes for an answer of 10 marker and about 10 minutes for the other question, that is your 15 marker question. Now it is very difficult to complete the paper in the first place itself. अब उसके ऊपर चैलेंज ये है कि you have to write opposite answers, apt answers. How are you going to manage that? एग्जाम हॉल के अंदर में अगर आपको पेपर कंप्लीट करना है, सो आपका सबसे पहले तो रिकॉल टाइम जो है वो क्रंच करना होगा. अनलेस योर रिकॉल टाइम इज क्रंच्ड, यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द पेपर. आपने आंसर तो बहुत अच्छा लिख लिया, लेकिन अगर 15 मिनट लग गए आपको 7 मिनट्स की जगह पर में, तो आप ऑलरेडी एक क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे. एक क्वेश्चन नहीं लिख पाना मीन्स यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द रेस फॉर दैट पेपर. इट्स अ बिग बिग लॉस. सो हाउ डू यू क्रंच योर recall time? To crunch your recall time, guys, you need keyword based micro notes on every topic of the syllabus. One pager notes based on keywords. Before your exam or before you start your revision phase, you must be ready with keyword based micro notes which you can then revise over and over again. और यही MRP और ये सारे प्रोग्राम का इंटेंट है कि आपके पास में वैसा लीन और क्रिस्प कंटेंट रेडी हो ताकि अच्छे से रिवाइज करके आप आपके रिकॉल टाइम को क्रंच कर सकें. Now, I have a student, Mr. Hussain Sayyed, this year who cracked with All India rank 570. And I was having a discussion with him regarding his mains papers. And he said some of the questions which we had discussed in practice, broadly on those lines, questions were reflected. And in those questions, he could write or complete the answer in less than 4 minutes. Why? Because the recall time was crunched since it was already prepared. So the game is to prepare your content beforehand so that that recall time is condensed. Getting this idea? Original thinking के लिए exam hall में आपके पास में वक्त नहीं होने वाला है. Getting things done and ready is what we have to do. So with history, what I'm going to do is thematically, for different ages, I am going to share some keywords with you. These keywords will enable you to compose answer in very less span of time. Okay? So this is about first part of content. Then content of your answer also has to be flowing in nature. Flowing as in
the arrangement of your thoughts and ideas have to flow smoothly. How does that happen? Two things are important for it. For a flowing content, first of all, the arrangement of your ideas has to be based on some sort of logic. That logic could be based on time, or it could be based on space, or it could be based on importance. You start with the most important point first and then go on to lesser important points. It could be that way as well. Whichever way, but there has to be some sort of logic to your flow. Unless that logic is there, your answer becomes just haphazard presentation of points which does not appeal to the examiner. Okay, so arrangement of your content. After that, your answer has to be laden with perspectives. Okay, a lot of students get confused between perspectives and evidences. Perspectives are different from evidences. Evidences वो facts होते हैं जिनको support करने के लिए हम जिनको यूज करते हैं हम सपोर्ट करने के लिए फॉर पर्सपेक्टिव्स. जैसे स्वदेशी मूवमेंट की बात चल रही है, और स्वदेशी मूवमेंट एक इनोवेटिव मूवमेंट था भारत की फ्रीडम स्ट्रगल में. देयर वर मेनी नोवेल इनिशिएटिव्स विद स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च्ड. जैसे फॉर एग्जांपल आत्मशक्ति, सेल्फ रिलायंस, ये एक थीम है स्वदेशी मूवमेंट का. स्वदेशी मूवमेंट के आंसर में हम इसको लिखेंगे. अब उसके सपोर्ट में वी हैव टू गिव सम एविडेंसेस. क्या एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं हम वहां पर में? एजुकेशन के लिए भारत में अपनी खुद की इंस्टीट्यूशंस बनाना, केमिकल फैक्ट्री पृथ्वी चंद्र रे, yes, many other things, matchboxes factories. What are all of these? These are evidences to support the perspectives. Okay, we tend to get overburdened with evidences. First emphasize on what? On perspectives. Okay, if perspectives are there, then evidences can always be built up, but it can't be other way around. Did you understand this? So content has to be flowing, it has to be laden with perspectives, and it has to be supported with evidences. Okay? Then comes next aspect of your answer writing, which is value addition. How do you make your answer different from others? This year, one of my students, I'm narrating the story to emphasize the point. One of my student, Vaibhav Vasant Dabodkar, he cracked this exam in his second attempt, second interview, and his rank is 76, All India rank 76. And he was asked what made him clear this exam at a relatively young age, second attempt itself, an IAS. He said that he worked a lot on bringing difference in his answers. A little bit of differentiation can fetch you half a mark more than the competition in every answer. Half a mark more over a paper of 20 answers gives you 10 to 15 marks more over the competition in that paper. And over 4 papers, that makes a big substantial difference. If you see the marks of toppers, you would know that for every 1 mark, there are 10 people sitting on that final tally. So a difference of 10 marks in one paper means you are up by 100 ranks. Okay. So to go up by 100 ranks, now you have to take effort to bring about some sort of differentiation in your answers. Okay. That is not going to happen in the exam hall. Reverse working has to take place. Strategically, we identify what differences can I bring in for each subject. ठीक है? So history में हम क्या difference ला सकते हैं? How can we add value to our answers of history? Sharpness कैसे आ सकता है? History में one good way of adding value is collection of quotes. The good thing about history is nothing new is going to happen. So the themes are set. Okay. And for every theme, if we have one quote ready, then it's easy to fire that quote in the exam hall, in the conclusion, or somewhere in the body. So get ready in that way. Quotes can be added. Second thing that we can always have for history is period. Whenever we write answers for history, we must ensure that in brackets we mention the specific time period when the event is taking place. That adds sharpness to our answer. Second thing. Third, we can add maps. Adding maps to our answers brings in a dimension to understand the space in which the activity is taking place, the event is taking place. History cannot be divorced from geography. It is a story that is spanning out on the stage of geography, basically. Bringing in maps brings in difference. Now, a lot of students worry that they are not able to draw good quality maps. But let me reassure you, dear students, that when it comes to drawing maps in your history paper, or for that matter, other GS subjects also,
You need not be a perfectionist. India looking like India is good enough for us. You are supposed to draw a map in 12 seconds. If you see the timing that you have for such value addition, 12 seconds में आपको map draw करना है, उसमें क्या ही आप perfection दिखाओगे, ठीक है? So start practicing maps, say a map of India, then maps of different regions of our country, map of Asia in general, map of the world, world history के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो यूरोप और अमेरिका के कुछ maps, 8 to 10 maps are good enough for us, ठीक है? But they will add tremendous value to your answer. And it also helps in the sense that it occupies a lot of space on the page. And that way you can manage the space aspect also. It gives a sense of, complete utilization of the dimensions of the page. So bringing in maps can add a lot of, effect to our answers. Got this point thus far? Okay. Then using of keywords. Every specific period has certain keywords for history. Okay? As we discuss the answers, we are going to discuss those. Okay? Bringing in those keywords also adds a lot of sharpness to what you are saying. We can have, just like we have collected quotes thematically, we can also collect the keywords thematically and then use it in our answers. So conscious but small difference is going to play a big role in our ultimate success. Second last aspect is presentation. The way your paper comes across to the examiner, the visual appeal of it also has a lot of impact on the marks that you're going to fetch. So it's crucial that from now onwards itself, try to use UPSC paper with the proper dimensions so that you are used to that limited space of writing. Try to use the space more effectively. Try to write in a handwriting that is legible and at the same time that is visually appealing. You don't have to have beautiful handwriting, but it should be readable. That much is expected of you. Okay? In presentation, you can use headings and subheadings. There was a research that was conducted regarding how people read text. It was a research done in a foreign university, and it showed that people first focus a lot on the introduction, and as they go down the page, the focus, we imagine this as the page, after reading the introduction very carefully, the focus is on the left side of your writings. The other part is generally glanced over. Okay, so we can use this to our advantage. After writing the introduction, which will be read very carefully, the subsequent points can be written with a small heading underlined. Okay, and then you can write your subsequent points. Wherever you have a keyword, underline that keyword so that the attention is caught over there and the examiner can breeze through your paper. So you'll read the introduction carefully, read the headlines of each of the points and directly go to the conclusion. Okay, this can be used in your answers. You can also use flowcharts and diagrams wherever appropriate. In history, we have less scope, but otherwise in general studies, definitely they can be integrated. Got my point thus far regarding presentation? Okay. Last aspect, seventh aspect of your answer writing is conclusion. Conclusion is an area again where the examiner will be very, very watchful regarding what you have written. Just like a lawyer submits his case before the judge, he hammers the point. So similarly here in UPSC answer writing, conclusion is that space where you are asserting what you want to say. And that's why writing effective conclusions is very crucial. Now, how to write good conclusions in history? History में क्या हम अलग conclusions लिख सकते हैं? History में 3-4 अलग-अलग तरीके हो सकते हैं conclusions लिखने के लिए. एक तरीका ये हो सकता है, क्वेश्चन जिस एरिया पर था, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया स्वदेशी मूवमेंट का, तो स्वदेशी मूवमेंट का जब हम आंसर लिख रहे हैं तो उसमें स्वदेशी मूवमेंट का जो लार्जर सिग्निफिकेंस है उसको हम टच करें. जैसे फॉर एग्जांपल, स्वदेशी मूवमेंट रिवाइव्ड अ कल्चरल नेशनलिज्म, इट लेड टू स्पिरिट ऑफ आत्मशक्ति एंड बूस्टेड द प्रोसेस ऑफ नेशन इन द मेकिंग. अब ये क्या किया हमने इस कंक्लूजन में? उस थीम के जो की पॉइंट्स थे, उसका जो इंपॉर्टेंस था, उसको हमने टच अपॉन किया. दिस कैन बी वन वे ऑफ कंक्लूडिंग इन हिस्ट्री. देन दूसरा हम क्या कर सकते हैं? सेकेंड थिंग दैट वी कैन डू इज, हिस्ट्री इज ऑलवेज अ फ्लो. So there are events in the past which cast shadows on events in the future. So we can trace that linkage as to how this event casted its shadows on subsequent future developments of history. जैसे for example,
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी कॉल्ड ऑफ दैट मूवमेंट आफ्टर चौरी चौरा। एनसीएम पे क्वेश्चन है, अगर वहां रेलेवेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, फिर हम उसको लिंक कर सकते हैं कि किस तरीके से इस डिसीजन ने गांधी जी का इंटेंट और कमिटमेंट डेमोन्स्ट्रेट किया, और फिर आगे के मूवमेंट्स के अंदर में हमको इनडिसिप्लिन जो है वो बहुत कम नजर आता है। व्हाट आर वी डूइंग, वी आर ट्राइंग टू लिंक दैट इवेंट टू सब्सिक्वेंट इवेंट्स। दिस इज सेकेंड वे। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। नंबर 1, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट इवेंट। Number 2, link that event to subsequent events. This is second thing that we can do. तीसरी चीज हम क्या कर सकते हैं तीसरी चीज, हम उसको कोई लार्जर वैल्यूज के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस हिस्ट्री के इवेंट को किसी लार्जर वैल्यू के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर उस इवेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में कोई रोल प्ले किया है, कुछ वैल्यू दिया है, कुछ आइडिया दिया है वहां पर में, तो उसके साथ में उसका कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जा सकता है। ठीक है, अगर वो हमारे किसी सिविलाइजेशनल वैल्यू या इथॉस के साथ में कनेक्टेड है तो हम उसके साथ में उसको लिंक कर सकते हैं। आ रही बात समझ में आपकी? जैसे एक मिसाल देता हूं आपको एलोरा आर्ट के ऊपर अगर सवाल आता है, एलोरा जो रॉक कट आर्किटेक्चर है उस पर सवाल आता है, उस पर हम कंक्लूजन लिख रहे हैं, तो उसमें हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? एलोरा की खासियत अगर आप देखेंगे तो वहां पर में हिंदू भी टेंपल्स हैं, जैन भी है, बुद्धिस्ट भी है और लोकल ट्रेडिशंस भी हैं, और ये बहुत एक साथ में एक प्लेस में ये सारी जो है वो हमको दिखती है। सो ये क्या बताता है? व्हाट डज दिस शो? इट शोज द एसिमिलेटिव नेचर ऑफ आवर इंडियन सिविलाइजेशन, द इथॉस ऑफ आवर इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, विच इज वेरी स्पेशल फॉर अस। इसको हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। सो लार्जर सिविलाइजेशनल वैल्यू को हमने कनेक्ट किया उसको। गॉट माय पॉइंट दस फार? ठीक है, तो तीसरी चीज हमने देखी कैसे कंक्लूड किया जा सकता है, using some larger value. Did you understand my point? Okay. Fourth thing that we can do regarding conclusions. चौथी चीज हम क्या कर सकते हैं? We can link that particular historical event to some current happening. ठीक है, किसी करंट हैपनिंग के साथ में हम उसको लिंक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कम्युनलिज्म, मुस्लिम लीग, पार्टीशन, इन सब के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं आज के चैलेंजेस के साथ में, कि उस वक्त का ये सोन सीड है जिसके आफ्टर इफेक्ट्स हम आज भी महसूस कर रहे हैं, एंड वी शुड नॉट मेक द सेम मिस्टेक्स दैट वी हैव मेड इन द पास्ट, राइट? सो कनेक्टिंग इट विद टुडेज करंट अफेयर्स। तो ये 4 तरीके मैंने आपको बताए कैसे आप हिस्ट्री के आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। गॉट द आइडिया? ठीक है, सो दीज आर दी 7 पॉइंट्स रिगार्डिंग आंसर राइटिंग। ये 7 पॉइंट्स अगर आपके हैं तो यू विल बी एबल टू राइट अ गुड आंसर। Now, very briefly, I'll give you an overview regarding some of the mandate words that UPSC has used as regards history as a subject. Okay? अगर आप 2013 से अभी तक के पेपर्स देखते हैं तो हिस्ट्री में आपको ये mandate words नजर आएंगे। Now, there are more words, but they have not been used in history. वो और सब्जेक्ट्स में यूज हुए हैं। अब ये क्विकली इन वर्ड्स को देखते हैं, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि ऐसे जब वर्ड आते हैं तो क्या एक्सपेक्टेशन होती है। सबसे ज्यादा जो वर्ड यूज हुआ है हिस्ट्री में वो है डिस्कस। ओके, डिस्कस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैंडेट वर्ड इन हिस्ट्री क्वेश्चंस एंड इट मेक्स अ टास्क वेरी इजी आल्सो। डिस्कस गिव्स यू द ब्रॉडेस्ट पॉसिबल मैंडेट। डिस्कस वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है? वी आर सपोज टू एक्सप्लोर दैट पर्टिकुलर थीम होलिस्टिकली, उसकी बैकग्राउंड, उसका फ्लो, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस इफ देयर आर एनी, if there is any debate involved, we are supposed to deal with all of that and give our view on it. This is discuss. It is not narrowing down, it is widening up. Okay, so UPSC has been indulgent for us. It has used discuss most often in history questions, making task relatively easy for us. Okay. Then SS. Second type of mandate that is used is SS. Assess करना, इस word का मतलब क्या होता है? When somebody asks you to assess, basically बिना किसी प्रेजुडाइज के यू आर एक्सपेक्टेड टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन इट बेस्ड ऑन एविडेंस ऑफ कोर्स। टू गिव अ वेरी सिंपल एनालॉजी, इफ आई टेल यू दैट सी दिस इज अ मोबाइल फोन दैट आई वांट टू सेल यू एंड द प्राइस ऑफ दिस इज 50,000 rupees, what are you going to do after that? You will try to assess, look at its condition, the model, the features, and then come to an opinion whether it is really worth the amount that we are saying. So without any prejudice, based on evidence, we come to a opinion. That process is called as SS. ठीक है, this is what we are expected to do.
Then justify and substantiate. These are similar mandate words. Justify and substantiate. अब इन दोनों में क्या करना होता है? इन दोनों में वी आर गिवन अ स्टेटमेंट जिसकी जिसकी सत्यता के ऊपर में वी हैव टू गिव सम एविडेंसेस, वी हैव टू प्रूव इट राइट. द गुड थिंग अबाउट जस्टिफाई एंड सब्सटैंशिएट इज द स्टेटमेंट दैट इज गिवन is true, it's right. What we are supposed to provide is reasons and evidences to support it. Okay? Then why do we have different words? How is justify different from substantiate then? Okay? Yes, justify is about arguments, the reasons that you give, whereas substantiation, as you said, is more about evidences. That is the difference between the two, justify and substantiate. Okay? Then comes comment. What do we do in comment? In comment, we are supposed to form a opinion about it, and then in the answer, we are supposed to defend that position, defend that stand that we have taken about it. So naturally, you're supposed to give the points that you feel are responsible for that opinion, and also counter the other side. अगर comment बोला है तो likely है कि दूसरी side भी होगी उसकी, तो उसको counter करना ये हमारा काम होता है comment वाले questions में. ठीक है? Then explain and elucidate. These are very obvious. Explain or elucidate में we are just expected to simplify something that might be more difficult to understand or complicated. Both are the same basically. Okay? On similar lines, you also have highlight and throw light upon. They are all in the same vein basically as far as history is concerned. Then comes elaborate. Elaborate, as the word suggests, you are just supposed to provide more information about that. You're not supposed to debate it, not be critical about it. जो भी स्टेटमेंट हमको दिया है उसकी और डिटेलिंग हमको प्रोवाइड करना है इलैबोरेट वाले क्वेश्चन में. देन टू वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स व्हिच आर यूज्ड वेरी ऑफ्टन, एग्जामिन एंड इवैल्यूएट. व्हाट डू वी डू इन एग्जामिन एंड व्हाट डू वी डू इन इवैल्यूएट? इवैल्यूएट, compulsorily we have to have an opinion on that particular thing that has been given. Whereas examining necessarily does not require to give you an opinion, it only wants to see you the truthfulness of the statement that has been given. Both of them get into the details, but the difference is evaluate expects you to also come up with your final opinion, stand, say on it. Okay? Then comes analyze. This word analyze comes from Latin words. Ana means down and lysis means to break. So analyze means to break something complex down to something simple. The given statement would have multiple parts. You are supposed to simplify that and establish the correlations among the different subcomponents. That is what analysis is expecting us to do. Got this point? Okay. Then when a prefix is added critically to these questions, then what does it mean? Critically basically means that you examine something based on evidence and give an opinion on that. You do the same thing as is expected in the original keyword, but the only thing is that you also are supposed to give your comment or opinion based on the evidence that you have provided. This is how we deal with each of these mandate words that UPSC asks in history. All clear with this? Yes? Okay. चलिए तो अब हम start करते हैं. Let us take the first question. Sheets मिल गई आपको? Everybody has them? Let us take the first question. Examine. अब देखिए यहां पर पहले हमने नोट किया what is the mandate over here? Examine. Examine the linkages between the political awakening during 1870s and the foundation of Indian National Congress in 1885. Examine the linkages between the political awakening during 1870s and the foundation of Indian National Congress in 1885. This is the question before us. So we have understood the mandate. Examine करना है यानी क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है, इसको गहराई से हमको देखना है. ठीक है? अब जब भी हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, एक सिंपल और आसान तरीका ये होता है कि पहले इमेजिन कीजिए कि उस एज में क्या मेजर थीम्स हमको नजर आती हैं. ठीक है? अब ये कौन सा पीरियड है हिस्ट्री का? ये आपका पोस्ट रिवोल्ट ऑफ 1857 टिल फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस. एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस. ठीक है? अब इस फेज में क्या ट्रेंड्स हमको दिखती हैं? फर्स्ट ट्राई टू रिकलेक्ट दैट. That will help us to formulate
our answer in a more effective manner. Post revolt of 1857 till the formation of Congress, क्या major trends हमको नजर आती हैं? Conservative policies of the British, okay? Formation of associations, different associations. Very good. Formation of associations. Railways and mass communications. Development of railways. Development of railways, okay. Economic critique. Economic exploitation and the critique of it, okay. Very good. Constitutional reforms. Constitutional reforms of 18. You start with Government of India Act 1858. Then we have Council Act of 1861, right? Okay. What else? Muslim community is highlighted for this revolt 1857. Okay. In the backdrop of revolt of 1857, we have this. ठीक है. What else? कोई specific इस period के गवर्नर जनरल साहब का नाम याद आता है? थोड़े से controversial. लिटन particularly. और लिटन के कुछ measures जो कि बहुत significant हैं. Vernacular Press Act, Arms Act, Afghan War. ठीक है. Maximum age for civil services. सिविल सर्विसेज के रिफॉर्म्स, स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज वो लेकर आया इंस्टेड ऑफ कोवेनेंटेड, इंडियंस नॉट अलाउड इन कोवेनेंटेड. ठीक है, ये सारी चीजें इस फेज में हो रही है. अगर ब्रॉडली हम इसको समराइज करें तो क्या नजर आता है? ये सारी ट्रेंड्स को अगर हम समराइज करते हैं, देखिए जो भारत का मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया था वो 1857 के रिवोल्ट में न्यूट्रल रहा. व्हाई? Because they expected that these people will modernize Indians and it will be beneficial for us. They were beneficiaries of that education and all of that. Okay? But post the revolt of 1857, what do we see? We see disappointment. Okay? Council Act ने sufficiently representation नहीं दिया, powers नहीं दी. सिविल सर्विसेज का प्रॉमिस किया था लेकिन इतने एंट्री बैरियर्स लगा दिए कि इंडियंस वहां जाकर के कंपीट ही नहीं कर सकते. 19 का टॉप एज था. लैटिन और वहां की जो लैंग्वेजेस थी वो आपको आनी चाहिए. Then staying in London, the expense, traveling, it was not possible, practically speaking. Indianization of civil services नहीं हो रहा था. Then expense, अब अफगान वॉर लड़ रहे हैं किसके खर्चे पर? भारत के टैक्सेस के खर्चों पर. So क्या हो गया? मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया which was educated in western ways now became disillusioned because of these policies. ये सारी चीजों का समरी निकल के आ सकता है. You all agree with this? And this led to a political churn in the decade of 1860s and 70s. ठीक है? हमने क्या किया? जो भी आपने कहा सब कुछ रेलिवेंट था, लेकिन उसको हमने कनेक्ट किया, एक लार्जर पिक्चर बिल्ड किया. Disappointment of middle class intelligentsia with the policies of the British led to a political churn in 1860s and 70s. Full stop. This resulted in creation of, जैसा आपने बताया, many regional organizations, ठीक है, and a need was felt for a all India platform. ठीक है, सो क्या हो गया? हमने इस सारी चीज को क्वेश्चन की डिमांड के साथ में एक तरीके से कनेक्ट कर दिया. गॉट द आइडिया नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है, सो इस थीम को लेकर के हम हमारे आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, दैट कैन बी आवर इंट्रोडक्शन. ओके, सो इंट्रोडक्शन में ये सारे पॉइंट्स हम लिख सकते हैं. देन आफ्टर दैट बॉडी में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे? बॉडी के अंदर में वी कैन टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस नाउ स्पेसिफिकली. Organizations. Yeah, and London. Right, yes. We can give examples of several political organizations springing up before this decade. कुछ examples हम बता सकते हैं. पूना सार्वजनिक सभा 1870, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, yes, British East India Association. Many examples can be cited to prove the fact कि देखिए ये political organizations create हो रही है. ठीक है, Indians who were not educated politically now in before this decade they are creating several organizations which were voicing political demands like reduce expenditure, Indianization of services, more representation in the council, so on and so forth, more powers there. Political organizations create हुई. ये एक पॉइंट हम बोल सकते हैं. ठीक है, दूसरी चीज हम उसमें क्या बता सकते हैं? कुछ मूवमेंट्स भी इस पीरियड में हमको दिखती है, पॉलिटिकल मूवमेंट्स. इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज उसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है. पॉलिटिकल मूवमेंट उसके लिए लॉन्च की. ठीक है. थर्ड, वी कैन गिव एग्जांपल ऑफ न्यूज़पेपर्स कमिंग अप. तिलक्स, मराठा, केसरी, बंगाली देयर, राइट. सेवरल एग्जांपल्स आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़े हैं. अब देखिए, अब आपको समझ में आ रहा है, ये है पर्सपेक्टिव्स और इसके सपोर्ट में हम क्या देते हैं? वो सारा एविडेंस.
बात समझ में आई आप लोग के? ठीक है, सो न्यूज़पेपर्स के बारे में हम बात कर सकते हैं इसके अंदर में. व्हाट एल्स कैन बी से पॉलिटिकली? integration of different sections, corporates and Critics of the government policies. Criticism of government policies through these newspapers. Yes. All of this led to what? इस सब की वजह से क्या आउटकम क्या निकल के आ रहा है, रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है? फीलिंग ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस. ये कीवर्ड याद रखना हिस्ट्री के आंसर में, हर जगह पर में ये हमारे काम आता है. ये थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है, ये चीजें जमा करके रखना है और आंसर में वीव करना है कीवर्ड्स को. सो इस सब से क्या हो रहा है? नेशनल कॉन्शियसनेस क्रिएट हो रहा है. पंडित नेहरू ने कहा था दैट वी आर अ नेशन इन द मेकिंग, कहा था ना, ठीक है. तो जो वेस्टर्न कंसेप्ट है नेशन नेशनलिज्म की, वैसी कंसेप्ट भारत में नहीं थी, लेकिन पूरे वर्ल्ड ओवर ये कंसेप्ट 19th सेंचुरी में फैल गई एंड वी वेंट थ्रू दैट प्रोसेस. ठीक है, तो ये नेशनल कॉन्शियसनेस बिल्ड कर रहा है. अब जब नेशनल कॉन्शियसनेस बिल्ड हो रहा है तो एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की भी तो जरूरत पड़ेगी. ठीक है, इसलिए फिर कलकत्ता से एक न्यूज़पेपर ने डिमांड उठाई दैट वी नीड टू हैव अ ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म. रीजनली हम ये सब कर रहे हैं, ठीक है, रीजनली हम कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार के कान पर उसका कोई ऐसा, इट्स फॉलिंग ऑन डेफ ईयर्स. अगर असर क्रिएट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? ऑल इंडिया लेवल पे काम करना पड़ेगा. ठीक है, सो इस रियलाइजेशन के चलते 1885 के अंदर में, बिकॉज ऑफ दिस बॉटम अप प्रेशर, ऑर्गेनिकली द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड. कंक्लूजन के अंदर में हम इसको लेकर आ सकते हैं. ठीक है, एंड दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस देन बिकेम द पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म टू टेक अप ऑल दीज मेजर इश्यूज बिफोर इंडियंस ओवर द नेक्स्ट डेकेड्स. ठीक है, कैन वी राइट एन आंसर लाइक दिस? ठीक है, विल यू लाइक टू ट्राई इट आउट? ब्रॉड पॉइंट्स है हमारे पास में. इंट्रोडक्शन, बॉडी में क्या आएगा, एग्जाम. देखिए अब इस स्टेज पे जो है ना, आपको एविडेंसेस के लिए डरना नहीं है. जैसे आप रिवाइज करते जाओगे मेंस तक, वैसे वैसे आपके वो एविडेंसेस स्ट्रॉन्ग होंगे. इस स्टेज पर व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन इज पर्सपेक्टिव्स. सो डोंट वरी विद रिगार्ड्स टू एनी सब्जेक्ट. पर्सपेक्टिव्स आ रहा है आंसर में तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक. हाँ, पर्सपेक्टिव नहीं आ रहा है तो फिर कुछ चीजें समझनी पड़ेगी. ठीक है, so can you take 7 minutes and write a quick answer on this? Those students who are there online, a quick Y in the chat box if you've been able to relate with the discussion thus far. Please feel free to type in the chat box if you have any doubts as we discuss. If you want to ask anything, please feel free to type here. Okay, Tabriz has asked a question, what is scope and mandate? Others can continue writing, I'll just briefly touch upon that. So scope, Tabriz, is the space that UPSC has defined for us to write that answer. जैसे अगर आप ये क्वेश्चन लेते हैं तो ये आपको क्या पूछ रहा है, 1870s की डेवलपमेंट ने कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस को, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन में हेल्प किया. दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन. सो ये है आपका स्कोप. यू डोंट हैव टू गो बिहाइंड, यू हैव टू स्टे विद इन दैट सेम लिमिट के 1870s की डेवलपमेंट जिनकी हमने अभी बात की है, ऑर्गेनाइजेशंस, न्यूज़पेपर्स, पॉलिटिकल मूवमेंट्स, डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ एन ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म कमिंग आउट, ये सारी चीजें क्या है, उस पर्टिकुलर स्कोप के अंदर की ही डेवलपमेंट्स हैं. ओके, सो दैट इज दैट ग्राउंड विच यूपीएससी हैज मार्क्ड आउट फॉर यू टू प्ले दैट गेम. दैट इज स्कोप. Mandate is the keyword that is given. Examine, for example, over here is the mandate. एग्जामिन करना है आपको कि कैसे इनके बीच में जो है वो लिंकेज है, इनके बीच में एक कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड है. दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू एग्जामिन देयर. ओके, शुभम, I'll just see where technically they have been uploaded or not. In any case, you can see the question on the screen. ठीक है, so you can use this question as a cue and write directly. Tabriz, am I clear about this? Let me know in the chat box with a Y or N, whatever the case might be. Okay, most welcome. Yes, Hussain, कोई दिक्कत आ रही है? Okay, take your time. Okay, so Yoga, I'll do that in due course. We have some questions based on that, so I'll do it there. Yes, done. Would you like to read it out? Acha, okay. But you could tell the essence maybe. That's what we do. Okay. Initially, 1857, there are the religions here. That case established in thereafter it resulted in multiple dimensions, political awareness. Indians. Respect to these journals, they had political awareness at the same time criticism of the policies of the British policies, yes.
face of Correct. at the same time they try to educate the this political education of the Indians, Mm-hmm. larger masses. Like through the books and the debate, economic policies were analyzed. Hmm. And they demanded. Yes, we can add an example there. Poverty and un-British rule in India. Dadabhai Nauroji. Yes. At the same time, they demanded for the constitutional Reforms. Yes. participation of still and civic participation in the civil services. Okay. Like there was a call from the Central Government. Correct. In response to that, there was effort by the votes in 1883 and 84. Hmm. Finally, in 1885. Yes. Okay. So in the conclusion, we have to emphasize, bring all of this to fruition and say that this created that bottom-up pressure for creating, it was not top-down, it was bottom-up. Okay, for creation of an all India platform which will serve as the guiding light for the political challenges before Indians. ठीक है, इस तरीके से हम उसको conclude कर सकते हैं. Okay. Any different way of concluding or introducing? Anyone would like to share? What have you written? Just I have talk about the revolt of 1857. And, Okay, now just one thing. You need not go as way back as 1857 revolt. We are just seeing, when I mentioned it earlier, we were seeing it as an age. What are the problems or challenges of this particular age? So you need not mention that per se because we have very less space for introduction. We can barely write 2 sentences. Okay? Why I'm, one idea behind this exercise is that we revise certain things also. That keyword should get refreshed. So with every age we are trying to extract कि इस एज में क्या हो रहा है, कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं और उससे हम क्या विजडम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन के लिए. सो यू नीड नॉट स्पेसिफिकली मेंशन, डायरेक्टली कम डाउन टू द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट पोस्ट दिस ईरा. ठीक है, ये बस हमने मेंशन कर दिया और फिर उसके कनेक्ट कर दिया सब्सिक्वेंट पॉइंट्स के साथ में. ठीक है, बट वन गुड थिंग आई सी इज दैट यू हैव ड्रॉन अ map also, a simple and basic one, but it serves the purpose. Okay, so he has already taken that lead. He has drawn a map and shown different organizations presumably where they were based. So half a mark more than the competition already. Okay. So in conclusion, I use SIP as a metaphor with respect to Congress. It became a SIP to which all the Indians failed towards the. Excellent. So this is one beautiful way of doing things. अगर आप थोड़ा सा ऐसे metaphor भी ले आते हैं, जैसे गांधी जी was the shepherd who was leading all Indians towards a common goal, और Congress was the ship that was carrying different political opinions towards a common goal of independence. So ये metaphorical भी अगर हम conclusion में सिर्फ body में नहीं, तो वो भी एक hard hitting type का conclusion उसमें हो सकता है. So this is a comparison. This is like educated people from foreign countries, like they saw the freedom over the foreign countries and they stand over the India with the comparison. We can do that. In the conclusion, ठीक है, but it's a double-edged sword. कैसे होगा कि you will really have to establish the relevance. I get what you're trying to say, लेकिन अगर वो आप establish नहीं कर पाए तो examiner को लगेगा कि ये क्या लिख दिया है. ठीक है, so वो it will require a higher level of skill to connect it with the demand of the question. I don't rule that out, but it's not that easy also. Got my point? What I'm trying to say? we can in the examine we say about the critique about the Congress. Just it was just a safety valve. नहीं, वो क्वेश्चन के स्कोप से बाहर है ना. लेकिन ठीक है, क्वेश्चन का स्कोप क्या है कि ये पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस से क्रिएशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है. ठीक है, तो वो चीज की हम बात कर रहे हैं. गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अगर आपने वो स्टैंड लिया कंक्लूजन में जैसे नहीं, हाँ, तो अगर आपने वो स्टैंड लिया तो आपको शुरुआत में लेकर वैसे आर्ग्यू करना पड़ेगा. एंड विच इज नॉट राइट ऑल्सो. दिस इज समथिंग दैट हिस्टोरियंस हैव सेटल्ड. ठीक है ना, तो कंक्लूजन में आकर के फिर आप वो कंट्रोवर्सी को हिट करके क्या अचीव करोगे? थ्योरी एज सच ऐसे ने उसमें इंट्रोड्यूस करके हमें बस उसका कोड अगर लिख दें कि दिस लेड टू ब्रिंगिंग इन वॉइसेस ऑफ द इंडियंस टू फॉर द फर्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. ओके, ठीक है, आई गेट दैट, फाइन, दैट इज डूएबल. ठीक है, लेकिन अगर हम उसके ऊपर में अगर हमारा ओपिनियन बनाएंगे दैट इट वाज यूज्ड एज अ सेफ्टी वॉल बाय द ब्रिटिशर्स, तो फिर हिस्टोरिकली भी इनकरेक्ट हो जाता है ना. वी कैन चैलेंज हिस्टोरियंस हु हैव स्पेंट देयर लाइव्स रिसर्चिंग समथिंग. सो इसलिए सेफ जो ओपिनियंस हैं हिस्टोरियंस के, वी गो बाय दैट. गॉट द पॉइंट दस फार? ठीक है, एक क्वेश्चन हुआ. चलिए एक और देखते हैं हम क्वेश्चन. लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये जो कंपैरिजन था जैकोबिन क्लब्स का एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस का, लाइक
middle class people educated from foreign countries and they come to the India and saw this like comparison ऐसे टाइप का कुछ किया टोटल. हाँ, एज आई सेड ना कि वो कैसे आप कैसे लिखोगे उसको उस पर मैटर करेगा. ठीक है. सो आइडिया एज सच आई एम सेइंग दैट आई एम नॉट रूलिंग इट आउट. आप इंटरकनेक्शन वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया का कर रहे हो, दैट इज फाइन, बट हाउ यू विल एक्चुअली पुट इट इन वर्ड्स, दैट ओनली देन आई कैन टेल यू वेदर इट इज गेटिंग कनेक्टेड विद द डिमांड और नो. गॉट माई पॉइंट. ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. द इंडियन नेशनल मूवमेंट took a major leap. ठीक है. Indian national movement took a major leap forward with the start of the Swadeshi movement. With the start of the Swadeshi movement, and here the mandate word given is elucidate. Elucidate. Elucidate comes from the root word LUC. ठीक है. इंग्लिश के रूट वर्ड्स हैं. LUC का मतलब होता है प्रकाश डालना, to throw light on. So the given statement, if the mandate word is elucidate, तो उसके अंदर में generally it is a right statement. We don't have to get into critically debating it. Got my point? So all that you have to do is, task is easier. We have to show how that is the case. Okay? So सवाल क्या कह रहा है? Indian national movement took a major leap forward with the start of Swadeshi movement. This is the question that is given to us. Okay? So now, what all can we talk about in the introduction of Swadeshi movement? अब आपको broad idea आ गया कि हमको उस एज के themes को ध्यान में रखना है और फिर क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से उसको मोल्ड करना है. ठीक है. स्वदेशी मूवमेंट हम ये कह सकते हैं that it is a big watershed in India's freedom struggle. Can we say that? Why is it a watershed? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आती हैं हमको वहां पर में? वाटरशेड मूवमेंट क्यों कहेंगे हम उसको? See, if you see the ideas that were used in Swadeshi, ठीक है, they are fresh ones, novel ones for that age, and then they continue ahead. Then there were innovative methods. Ideas, innovative methods, hitherto untouched sections, and yes, regional spread, सेक्शंस में आ गया वो. अब हमको इंट्रोडक्शन में लिखना है ना. ठीक है. सो इंट्रोडक्शन में हम सारी चीज तो नहीं लिख सकते, लेकिन हमको एक थोड़ा सा क्रिस्प उसका सार बताना होगा. सो वी कैन से दैट स्वदेशी मूवमेंट वाज अ वाटरशेड मूवमेंट फॉर इंडियन नेशनल मूवमेंट ऑन अकाउंट ऑफ न्यू आइडियाज, इनोवेटिव मेथड्स, इंस्टीट्यूशंस एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ hitherto untouched sections. फुल स्टॉप. ठीक है. आइडियाज में आ गया वो, है कि नहीं? सो हम क्या कर रहे हैं कि बहुत सारा जो कंटेंट है ना, उसको कैसे हम पैक करें ऐसे सेंटेंस में विच विल सर्व एज द बेस फॉर दैट लेटर एक्सपेंशन. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. समझ में आई बात आप लोग की? कैन वी राइट इट दिस वे? कंसेंसस एवरीबॉडी? ओके. तो इस तरीके का हम इंट्रोडक्शन इसमें कर सकते हैं. देन नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी बॉडी. ठीक है. बॉडी में कैसे ये एक मेजर लीप है. लीप का मतलब क्या होता है? इट्स अ बिग जंप. ठीक है. सो इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल बिफोर स्वदेशी मूवमेंट कैसा नजर आता है हमको? मॉडरेट गोल्स, मॉडरेट मेथड्स, प्रेयर्स, पिटिशंस, प्रोपेगेंडा, मीटिंग्स, इसमें लिमिटेड था. लेकिन अगर आप स्वदेशी मूवमेंट की बात करते हैं तो हमको क्या दिखता है? वी सी वेरी डाइवर्स काइंड ऑफ आइडियाज इन दैट सेम मूवमेंट. उसमें मॉडरेट्स भी है, उसमें एक्सट्रीमिस्ट भी है. डाइवर्सिटी आ गई कि नहीं? उसमें रेवोल्यूशनरीज भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें सोशलिस्ट टिंज भी हमको नजर आता है. यू ऑल एग्री विद दिस? ठीक है. सो इन टर्म्स ऑफ द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ इट, इट इज अ वेरी डाइवर्स सेट. ठीक है. जैसे आपको आगे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनता हुआ दिखेंगे अंडर गांधी जी, उस जमाने में भी कैसा दिखता है हमको? हिंदू महासभा के भी लोग थे, मुस्लिम लीग के भी लोग थे इन इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है. यू हैड कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट ऑल्सो, यू हैड रॉयिस्ट ऑल्सो, यू हैड लेफ्टिस्ट ऑल्सो, यू हैड
right wing people also, all different diverse ideas were there in Indian National Congress during Gandhian time. Base कहाँ आ रहा है? स्वदेशी मूवमेंट के अंदर में ये दिख रहा है ना हमको, diverse ideas. Can we say that? ठीक है. Then can we talk about the methods, innovative methods? क्या क्या methods कह सकते हैं हम यहाँ पर? सबसे पहले boycott, ठीक है. Then okay, picketing. Okay, temperance. What else? Local education has been promoted. Okay, वो आगे आएगा. That's an important separate point altogether. Okay, institutions में एक अलग ही point इसको करता हूँ. Institutions. जैसे National Council for Education, पैरेलल इंस्टीट्यूशंस बनाने का प्रयास हो रहा है यहाँ पर में. ओके, मेथड्स में और क्या है? सॉन्ग्स, प्रभात फेरीज, ठीक है, आर्बिट्रेशंस, यस. सो ऑल ऑफ दीज विल बी इनोवेटिव मेथड्स. मॉडरेट्स ने पहले ये किया था क्या? नहीं किया था. गॉट दिस पॉइंट? ठीक है. सो मेथड्स, इंस्टीट्यूशंस ये अलग हो गए. और क्या इनोवेटिव कह सकते हैं हम इसके अंदर में? ओके, यस, दैट वाज व्हाट आई वाज कमिंग फॉर. Cultural aspects. Cultural aspects. Shivaji festival, Ganesh festival. ठीक है. Melas, use of melas was there. Lantern shows in villages to tell people about the idea of boycott and stuff like that. Then और बड़े लेवल पे अगर आप देखेंगे तो अमर सोनार बांग्ला, ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर, ये क्या करते हैं? पेंटिंग के अंदर में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को तोड़ देते हैं और एक इंडियन, मॉडर्न इंडियन स्कूल की शुरुआत करते हैं. स्कॉलरशिप्स फॉर इंडियंस टू गो एंड स्टडी अब्रॉड. जापान के साथ में कोलैबोरेशन, जापान वहां मॉडर्नाइज हो रहा है पैरेलली, राइट. सो ये सारा क्या है? ये एक लीप फॉरवर्ड दिख रहा है आपको इसमें फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर में. यू ऑल एग्री विद दिस? ठीक है. सो दीज आर द डायमेंशंस दैट वी कैन हिट इन द आंसर. बिकॉज ऑफ ऑल दिस व्हाट हैपेंस? आत्मशक्ति इज स्ट्रेंथेंड, a cultural resurgence is emphasized, and again that our common point, national consciousness is strengthened. ठीक है. This movement left a long legacy in the freedom struggle of India. तो एक beautiful finality पे आकर के हम उसको complete कर देते हैं. ठीक है. समझ में बात आप लोग की है? ठीक है. Will you like to attempt this question also? ठीक है. चलिए, लीजिए कुछ वक्त और attempt कीजिए इसको. एंड एज आई टोल्ड यू, इस स्टेज पे डोंट वरी, सब फैक्ट्स नहीं हाल आ रहे हैं. तो हमारा काम क्या है ना, स्ट्रक्चर और कीवर्ड्स ये हिट हो रहे हैं, पर्सपेक्टिव्स आ रहे हैं, फैक्ट्स आ जाएंगे धीरे धीरे. दो और पर्सपेक्टिव्स हमने डिस्कस किए थे लेकिन मैंने लिखा नहीं था. स्प्रेड, लैटरल स्प्रेड एंड सेक्शंस इन्वॉल्व्ड. ठीक है. वुमेन का पार्टिसिपेशन, लॉयर्स, यंगस्टर्स का, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन, ये सारा जो है वो हितरटू नहीं होता था. Swadeshi movement, like we should start with the Swadeshi movement itself, or we should have introduction part. इंट्रोडक्शन तो आएगा ही किसी भी आंसर के अंदर में. So, हाँ, आप कह रहे हैं कि पीछे से कितना वो हम उसको कॉन्ट्रास्ट करें. ठीक है, राइट. सो हम इंट्रोडक्शन के अंदर में ये कह सकते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट वाज अ वाटरशेड मूवमेंट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एज इट डिफरेंशिएटेड इटसेल्फ विद द अर्लियर मॉडरेट फेज एज रिगार्ड्स टू जो हमने पॉइंट्स मेंशन किए थे. ठीक है. दो स्टूडेंट्स हु आर ऑनलाइन एंड दे वुड लाइक टू शेयर सम पॉइंट्स ऑफ देयर्स, प्लीज फील फ्री टू टाइप. आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट if it is possible, then you can do that. The whole idea of this exercise is to make you write in the class itself, so that later on that task is not remaining, because what happens is we always plan that we will write these many answers, but it does not work out. So यहाँ क्लास में ही डिस्कस करके हम उसको लिखते रहें तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा. Yes, Shubham, that can also be added towards the conclusion. Definitely we can say that. Yes, Sumit, you can say that also. Yes. मेथड में एक और ब्यूटीफुल चीज थी यहाँ, सबास तो थी, और रक्षाबंधन, हिंदूज एंड मुस्लिम टाइंग राखीज टू ईच अदर. हुसैन, अगर आपको कोई दिक्कत आती है ना आंसर राइटिंग में, इस स्टेज पे आपको जैसे जमता है आप लिखिए, सोचिए मत ज्यादा. वंस यू गेट दैट आउट ना, एक दो तीन आंसर ऐसे आप लिख देंगे, भले से उसमें और क्रिटिकल फीडबैक आपको मिलेगा, लेकिन वंस यू हैव दैट थिंग आउट ऑफ यू, तो फिर आगे आंसर लिखना आसान हो जाएगा. तो सोचिए मत ज्यादा, जैसे लग रहा है बस लिख दीजिए. मेक इट अ कॉन्शियस प्रैक्टिस टू यूज हेडिंग्स. Okay, and with every point try to have a heading at the start of it also and underline it.
all of these SOPs will have to be ingrained so that effortlessly they come out in the exam hall. You can use boxes for major structural headings. Yes, that's what I meant by spread, Sumit, that this movement was not confined to Bengal, although it starts with the partition of Bengal, but then it was extended to across the country. There are many examples like Tilak took it to Maharashtra, Bombay and Pune particularly. And then Sayyid Haidar Raza took it to Delhi, Lala Lajpat Rai in Punjab. And then even in Peshawar, we see that Swadeshi movement found some repercussions, even in Jammu area. So in South, we have some, evidence of that also. So across the country, we see the spread. So that's a very valid point about this movement. Yes, Tabriz, that is nicely put. Good conclusion. See, we are not critically appraising it. No? What we are seeing is that it marks a leap as such. So that is the focus. So had it said, critically analyze this, ऐसे अगर कुछ होता, तो फिर we would have got into the, limitations of it as such. But here it is not required. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, इंडियन नेशनल मूवमेंट टुक अ मेजर लीप विद द स्टार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, एल्यूसिडेट. सो वो लिंक एस्टैब्लिश करके हमको बताना है, प्रूव करना है. सो इट इज नॉट अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द मूवमेंट इटसेल्फ. वैसा क्वेश्चन होता तो फिर वी वुड हैव गॉन फॉर इट. ओके, डन. During these answer writing sessions, we are targeting different areas of the syllabus so that we touch upon everything. In that process of writing, we also discuss some peripheral things, and all of that gets revised. Okay, so you see, in optional, we get into a lot of detailing. In general studies, we are just supposed to focus on the broader perspectives, like we try to do over here. The ideas, methods, institutions, all of those things. And we don't get into too much of detail. In optional, you have that kind of a space, and that is a requirement also over there, but not with general studies. So you have to keep yourself limited, and in a way, don't show that you are a student of history optional, because if you've written a good answer and it is visibly a answer of a history optional student, then it might, I'm not saying necessarily, it might prejudice the examiner that if a history optional student has written, it does not make that big a deal. So try to keep it like a studied or well-informed GS student only, not like a history optional student. Okay, fine guys. Second answer. ठीक है, चलिए. Quickly, anybody, introduction and conclusion only of this answer. Points तो सारे आप perspectives आपने cover कर ही लिए होगे. Any different way of introducing or concluding, but you drew a map now this time round, and it's a beautiful one that has turned out. So that's good. I did want to write objective of Curzon to divide the index. Fine. Result of the ठीक है. Yes. Fine. Yes. In the end, sir, I ended with the fire which lit the Manchester cloth became so big that it burned the British. Well, a good attempt, but then थोड़ा सा exaggeration, थोड़ा exaggerate हो रहा है ये. कैसे हो रहा है कि it did not really in that sense destroy the British Empire or British rule in India, na? Okay, so you can use that metaphor. The fire that lit Manchester cloth became a raging issue for the British to consider. या ऐसे कुछ तरीके से आप उसको कर सकते हैं. So what you are concluding in the end is that it at that point itself destroyed it. That was not the case, no? Okay, but the idea is right. That's what I'm trying to say. Idea is good. Like that, 1945 तक उसको लिख कर सकते. हाँ, अगर वैसा कुछ आप करें, हाँ, अगर एक्सप्लिसिटली अगर आप वैसा मेंशन करें कि यहाँ से जो चिंगारी निकली है मैनचेस्टर क्लॉथ के जलाने में से, उसको 1947 तक जो है वो फिर आगे चला है कारवां. सो दैट वे यू कैन डू इट. ठीक है. Swadeshi movement was a watershed movement, hitherto passive Indian national movement under the moderates, which used praise and placation. ओके, पैसिव सिर्फ वर्ड से मुझे वहां पर ये है क्योंकि पैसिव एक दूसरे सेंस में यूज होता है. जैसे कि यहाँ पर जो हम मूवमेंट्स चला रहे थे, बॉयकॉट एंड ऑल ऑफ दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस. सो हिस्ट्री में ये जो टर्म है पैसिव, उसका एक अपना कॉनोटेशन है. ठीक है, तो वहां पर वो मिसफिट हो रहा है. बाकी आई गेट द आइडिया दैट यू आर ट्राइंग टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, सो दैट इज रेलिवेंट बिकॉज इट्स अ लीप फ्रॉम वेयर टू वेयर ना. सो यू आर ट्राइंग टू शो दैट. That is fine, but the use of the word passive is the only thing that I object to over there. Okay, so non-cooperation movement क्या था basically? Passive resistance था ना. हम आपके साथ cooperate नहीं करेंगे. फिर civil disobedience मतलब हम law break कर रहे हैं in a civilized way though. So that is one notch higher. And then quit India. So the tempo is going up. आ रही बात समझ में? और वो passive resistance की शुरुआत स्वदेशी movement में ही दिखती है हमको through different types of boycotts. Okay.
सो दैट इज द ओनली थिंग, पैसिव वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है बस, दैट्स ऑल. methods which Gandhiji used at different pages Yes. together with became a test paper. Yes, that's what we noted na, ki very different and diverse type of ideas and methods. So you have memorandas also, you have meetings also, you have articles written in the newspaper, all of that is also there, and at the same time passive resistance का भी आपको technique वहां पर में दिख रहा है. So a cross section of ideas and methods, that is what makes it very special. Okay, got the point? Culture वाले points लिखे होंगे आपने, I hope. Cultural resurgence, right? National consciousness. Okay, these kind of words need to come in your answer. अगर direct conclusion में ऐसा लिखे, India saw the huge jump compared to earlier revolution as it united people with a different religion, age, with altogether new idea of methodology, which strengthened the Indian national consciousness further. ठीक है, आइडिया इज गुड, थोड़ा सा लैंग्वेज में शार्पनेस की जरूरत है, बट द आइडिया इज गुड. ठीक है, एक क्विक क्वेश्चन देखते हैं, इसको लिखेंगे नहीं, बस हम आइडिया देख लेंगे इसके अंदर में क्या क्या पॉइंट्स आ सकती हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914 गिव अ न्यू लाइफ टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट. ठीक है, हाउ डिड द आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914 गिव अ न्यू लाइफ, लीज ऑफ लाइफ टू द नेशनल मूवमेंट. सो हाउ विल वी डील विद दिस क्वेश्चन. अब दो क्वेश्चंस थोड़ा सा मैंने इनिशिएट किया, राइट? अब थोड़ा सा आपकी साइड से कुछ पॉइंट्स इस पे कैसे हम डील करेंगे. अगेन हमारा फ्रेमवर्क क्या है हिस्ट्री का, थोड़ा सा उस एज को थोड़ा सा रिकलेक्ट करें, क्या उस वक्त हो रहा है. इट गिव्स अस क्यूज, कहां से शुरू हो सकता है, क्या बातें चल सकती हैं. Segmentation within the एक्सीलेंट, राइट? Indian National Congress, extremist and moderate. करेक्ट, यस, Wide political leadership. यस यस, वेरी गुड, राइट. तो ये एक अच्छा वो हमारा स्टार्टिंग के लिए थीम हो सकता है. क्या हो गया था, स्वदेशी मूवमेंट कॉल्ड ऑफ, Model Minto reforms, extremists in jail, extradition, or they are sent abroad. Like Tilak was there in Mandela, Lala Lajpat Rai was in USA. So extremists are not there. Moderates are happy with whatever has come. They're not happy, but then they're at least going along with it. So entire nationalist movement was in a downward throw, basically. ठीक है. So एक sentence में हम बता सकते हैं इसको कि backdrop में ये चीज हो रही थी, and along comes World War I, and new forces are unleashed, which will give a boost to the freedom मूवमेंट और नेशनलिस्ट मूवमेंट. कर सकते हैं हम इस तरीके से, गुड वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग. ठीक है, चलिए ये हो गया. अब बॉडी में क्या लिखेंगे, कौन कौन सी चीजें हैं वर्ल्ड वॉर 1 और उससे कनेक्टेड, उस पीरियड से कनेक्टेड, जिसमें हमको दिखता है कि फिर से रिवाइवल हो गया है. हमारी होम रूल लीग का डिस्कशन आ सकता है उसके अंदर में. ओके, एक्सीलेंट, उसकी बात की जा सकती है. Hindu Muslim unity, Lucknow Pact. Lucknow Pact, Congress and Muslim League, they patch up, very significant. What else? और क्या ट्रेंड दिखता है, एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड थोड़ा सा मिस हो रहा है. ओके, अराइवल ऑफ लीडरशिप, वो थोड़ा टुवर्ड्स द एंड, वो भी हम कह सकते हैं. Expense of the Indian के through, expense of the Indian nation is. ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 and its associated shortages, it's all the problems, inflation, many things that made Indians irritable. Okay, but फिर भी एक significant चीज रह रही है, वर्ल्ड वॉर 1 के अराउंड में कुछ बहुत पड़ा हुआ है. He mentioned that, but then उससे भी ज्यादा significant. I'm waiting for that to come. क्या हुआ, पूरा चैप्टर पढ़ा है आपने उस पर ऑलमोस्ट. गदर मूवमेंट, राइट? सो अगेन रेवोल्यूशनरीज का रिवाइवल है. ठीक है, हमको लेट 19th सेंचुरी में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज दिखती है, अप टू स्वदेशी मूवमेंट, फिर थोड़ा सा लल फेज है, और वर्ल्ड वॉर 1 के आसपास में बागा जतिन का सारा कैंपेन आपको बंगाल में दिखता है. गदर मूवमेंट का इतना बड़ा सारा यूएस बेस्ड एक्सपैट्स ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर हियर, राइट? सो रेवोल्यूशनरी एक बड़ा उसमें डायमेंशन हो सकता है. तो आपने 7-8 तो डायमेंशंस बताई दी, राइट? इतने में एक 10 मार्कर आंसर बन सकता है, राइट? कंक्लूड कैसे करेंगे इसको? Build up background for the एग्जैक्टली, दिस इज द थिंग. हिस्ट्री में आंसर राइटिंग की यही ब्यूटी है, हर चीज कनेक्टेड है, बस आपको एस्टेब्लिश करना आना चाहिए. होम रूल लीग ने क्या किया, बड़े बड़े नाम दिए ना, ठीक है, जो नहीं वो तो लीडर्स थे, लेकिन सेकंड रंग जो लीडरशिप थी, तिलक की डेथ के बाद में दीस पीपल ज्वाइन गांधी जी. ठीक है, इंदुलाल याग्निक कौन है, ठीक है, ये होम रूल लीग में से ही तो आए हुए लोग हैं ये सब लोग. ओके, सो ट्रांजिशन हो जाता है, गांधी जी टेक्स ओवर एंड फ्रीडम स्ट्रगल को क्वालिटेटिवली एक डिफरेंट लेवल पर वो ले जाते हैं, और ये सारी चीजों ने उसका बेस प्रोवाइड किया. हिस्ट्री में ये होता ही रहेगा, बेस आता रहेगा अगले फेज के लिए. ठीक है, सो इस तरीके से हम कंक्लूड कर सकते हैं उसको. तो ये आपका होमवर्क वाला आंसर है.
ओके, ये आप घर पे लिखें क्योंकि थोड़ा सिंपल भी है, डायरेक्ट है, आप लिख सकते हैं उसको। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ओके, दोज हु आर ऑनलाइन दे आर एबल टू रिलेट विद व्हाट वी आर डिस्कसिंग, अ क्विक व्हाई इन द चैट बॉक्स गाइस। अगला क्वेश्चन, एग्जामिन हाउ द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर paved the way for British colonization of India. How Battle of Plassey and Buxar paved the way for British colonization of India. ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एग्जामिन। ठीक है, सो कैसे ये हुआ, इसकी गहराई में हमको जानना है, इसकी डिटेल्स में जाना है, इसकी डेप्थ में जाना है। एग्जामिन बोला है, इसका मतलब ये है कि मोस्ट लाइकली इसके अंदर में कोई काउंटर साइड नहीं होगी, जरूरी नहीं है लेकिन मोस्ट लाइकली, सो वी आर सेफ इन दैट सेंस। सो अब इस स्टेटमेंट के हमको डेप्थ में जाना है, राइट। तो अब कैसे इस क्वेश्चन को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर ने किस तरीके से ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन का फाउंडेशन रचा है, ये हमारे सवाल का एसेंस है। ठीक है, तो अब क्या हुआ है बैटल ऑफ प्लासी बक्सर में, ऐसे देखिए हमारा चैलेंज ये होता है इंट्रोडक्शन में, वो जो सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, उसका निचोड़ बस देना आना चाहिए हमको। तो उसका निचोड़ कैसे एक्सट्रैक्ट करें, जो इकोनॉमिक पावर वो पॉलिटिकल पावर में ट्रांसफॉर्मेशन। ओके ओके, व्हाट एल्स, मर्केंटाइल फेज वाला था, कॉलोनाइजेशन वाला उसका जो फुटिंग है। ठीक है, दैट कैन बी वन वे ऑफ सेइंग इट। व्हाट एल्स, British were able to identify the weaknesses of the Yes. debated. एग्जैक्टली, व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, बट दैट इज अ मोर अप्रोप्रिएट, जैसे हम कहते हैं ना कोर। कोर क्या हुआ बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर में, क्या मिला उनको, बेसिकली ये जो रॉट था इंडियन पॉलिटी, इंडियन सोसाइटी मीर जाफर मीर कासिम यही के थे ना, तो हाँ, जगत सेठ, मानिक चंद, ओमी चंद, ये सब कहाँ के थे, ये इसी समाज के लोग थे। ठीक है, तो पॉलिटी का रॉट दिखा, सोसाइटी का रॉट दिखा, टेक्नोलॉजी का रॉट दिखा। अब बक्सर की लड़ाई में देयर आर 45,000 इंडियंस फाइटिंग अगेंस्ट 7,000 ब्रिटिश, बट देयर इज अ राउट ऑफ इंडियंस, तो ये टेक्नोलॉजिकल मिलिट्री बैकवर्डनेस भी तो है ना। ठीक है, सो एट मल्टीपल लेवल्स इंडियंस का जो बैकवर्डनेस था उसको एक्सपोज करके रख दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफॉर्म कर दिया फ्रॉम अ मियर ट्रेडिंग एंटिटी टू अ पॉलिटिकल पावर। ये समरी आ गई हमारी, बैटल ऑफ प्लासी बक्सर ने क्या किया। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने इसको बता दिया। ओके, अब हम जाएंगे आगे बॉडी के पार्ट्स में। अब प्लासी और बक्सर, इन दोनों का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, हालांकि दोनों डिफरेंट इवेंट्स एक ही फेज के हैं लेकिन दोनों का कंट्रीब्यूशन डिफरेंट है। तो अब प्लासी और बक्सर को हम डिवाइड करके 2 डिफरेंट एरियाज में हम उसके पॉइंट्स बता सकते हैं। तो प्लासी और बक्सर के बारे में हम क्या बोल सकते हैं इंडिविजुअली, इंट्रो का पॉइंट तो समझ में आया, कैसे लिख सकते हैं हम लोग उसको। बॉडी में क्या लिख सकते हैं, बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो कॉन्फिडेंस है हाँ इंग्लिश का, वो हाँ। बूस्ट अप हुआ। ओके कल्मिनेशन वो बैटल ऑफ बक्सर में दिखा। ओके, Increased ठीक है। confidence। ओके, प्लासी से इमीडिएटली क्या हुआ, देखिए प्लासी कब होती है, प्लासी 1757 है। ठीक है, प्लासी जीतने की वजह से इमीडिएटली क्या हुआ है, इकोनॉमिक पावर, रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। पूरे मुगल पीरियड में, स्पेशली लेटर पीरियड के अंदर में, सबसे रिच प्रोविंस कौन सा था, नवाब्स ऑफ बंगाल सबसे पावरफुल थे ना। ठीक है, तो अब वो बंगाल इट इज देयर विद द ब्रिटिशर्स, तो इकोनॉमिक रिचेस आ गई उसकी वजह से। उसका क्या इंप्लीकेशन हम और बोल सकते हैं, व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट, ओके, एक्सप्लॉइटेशन, फाइन, वो भी आएगा। इमीडिएट हम क्या बोल सकते हैं, Political disadvantage. रिसोर्सेज ऑफ बंगाल मिली, उसकी वजह से क्या हुआ, अगेन हिस्ट्री में कंटेक्चुअलाइज, आसपास में क्या हो रहा है। वो बुलियन जो थे वो नहीं है। हाँ, 1961 was the South. एग्जैक्टली, सो साउथ इंडिया में स्ट्रगल चल रहा था विद द फ्रेंच, दीज रिसोर्सेज हेल्प देम टू फाइनेंस द वॉर एंड डिफीट द फ्रेंच। बड़ा चैलेंज था ना, इंडियंस तो टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड थे, हरा नहीं सकते थे, चैलेंज तो यूरोपियंस के से उनको मेजर था। प्लासी enabled them to do this। ठीक है, दूसरा, तीसरा और क्या कह सकते हैं, what else can be said? Role in Indian politics, they interfered with the Indian. Okay, they established a method of manipulating people and winning power, that can be said। Okay, what else? मैं कुछ और मैं मेजर पॉइंट्स के ऊपर मैं थोड़ा सा एम्फसाइज कर रहा हूँ। वो जो रिसोर्स बंगाल से ले रहे थे वो परचेज कर रहे थे यहाँ के गुड्स,
और जो वहां से जो बुलियन जो आ रहे थे ब्रिटिश से, वो Right. स्टॉप हो गया. करेक्ट, ओके. सो इकोनॉमिकली जो है मर्केंटलिज्म में इट वाज अ बिग बूस्ट फॉर देम. यस, वी कैन से दैट. बट देयर इज समथिंग स्पेसिफिक दैट आई एम लुकिंग फॉर. ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट. थोड़ा सा एनालिटिकल एक पॉइंट जो है वो मिस हो रहा है. हम प्लासी की बात कर रहे हैं, हम कलेक्टिव बात नहीं कर रहे हैं, बक्सर की बात नहीं कर रहे. ब्रिटिश को थोड़ा दो स्टूडेंट्स हु आर ऑनलाइन, वुड दे लाइक टू सजेस्ट समथिंग? क्या और ऐड कर सकते हैं हम इसमें? ब्रिटिश को इकोनॉमिकल थोड़ा अच्छा लगा. इंडियन has been seen as the glorified nation. British India. नहीं. You are able to consolidate the resources of the country. Unto this point, their identity over here was that only of a trader who is meddling a little bit in fratricidal or succession wars. Now they have become a political power in their own right, thus enhancing their prestige in the country. ठीक है, अब उनको सिर्फ एक ट्रेडर के तौर पे नहीं देखा जाएगा, दे आर अ सिग्निफिकेंट प्लेयर, पॉलिटिकल प्लेयर इन दिस गेम. ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं? पॉलिटिकल प्रेस्टीज एनहांस हुआ. ठीक है, सो दिस इज अ सिग्निफिकेंट पॉइंट दैट प्लासी ब्रिंग्स इन. ओके, सो पॉलिटिकल प्रेस्टीज ये हम कह सकते हैं. जी हाँ, वहां पर भी आएगा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद और उसका भी होगा, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम उनको ये पॉलिटिकल प्रेस्टीज कहाँ मिल रहा है? इट इज ओवर हियर ना. नाउ द नवाब इज लाइक इन देयर पॉकेट. दे कैन मेक हिम डू वॉट एवर दे वांट हिम टू डू. उन्होंने जो नवाब ये लेकर आया था मीर जाफर को, सो ही वाज कंप्लीटली अ पपेट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. इससे पहले उनको ऐसा पॉलिटिकल रोल मिला था क्या? नेवर बिफोर दिस. दे पार्टिसिपेटेड इन सम वॉर्स बट नॉट द वे Plassey won them political prestige was ever won before. It was first victory of the Indian rule. फर्स्ट विक्ट्री, हाँ आप ये कह सकते हैं, लेकिन साउथ इंडियन वार्ड्स के अंदर में कुछ विक्ट्रीज उनको मिली थी, जैसे चंदा साहिब के साथ में जब अलाई किया था उस वक्त में. Independent नहीं था. हाँ, इन दैट सेंस यू कैन से यस. ठीक है, तो प्लासी के कुछ पॉइंट्स हम कह सकते हैं. बक्सर के बारे में फिर अगेन वी कैन हैव अ सेपरेट हेडिंग. बक्सर के रिलेटेड क्या पॉइंट्स कह सकते हैं इंडिपेंडेंटली? Okay, so a major political alliance, Mughal king, Nawab of Awadh and Nawab of Bengal, all of them put together. So a major political coalition, most prestigious Mughal king भी है वहां पर में. One. Second, it proved one very significant thing. एक बहुत significant चीज prove हुई जो प्लासी में नहीं हुई थी, बक्सर में हुई. What can we say about it? उसको एक साथ में डिफीट किया. जी एक साथ में डिफीट किया. नहीं, वो तो पहले इसमें बात हमने कर ली. There is something very significant that is proven in Buxar, which was not proven in Plassey. Empire to defeat करना, it's like defeating the whole India. Fine, that's a valid point. मुगल किंग का उस तरफ में होना वो एक अलग लेवल पे उसकी प्रेस्टीज को एनहांस करता है, वो एक वैलिड पॉइंट है. लेकिन एक सिग्निफिकेंट और चीज है जो प्लासी में नहीं हो पाई थी लेकिन बक्सर में होती है. हाँ? नो, इंडियन रिसोर्स यूज करके ब्रिटिश इंडियन के खिलाफ ही और हुआ था. वो तो नवाब नहीं, दैट वाज ऑलवेज द केस ना. मीर जाफर हैज बीन देयर विद. क्या हो सकता है? देखिए, प्लासी वाज वन थ्रू कॉन्स्पिरेसी. ठीक है, सो देयर वाज स्टिल अ डाउट वेदर द ईस्ट इंडिया कंपनी कैन टेक ऑन अ स्ट्रॉन्ग इंडियन अपोजिंग फोर्स. बक्सर में तो पूरी लड़ाई है ना, बल्कि डिसप्रोपोर्शनेट लड़ाई है. वहां 40,000 है और ये 7,000 है. मेजर हेक्टर मुनरो लीड कर रहा है, 7,000 की ट्रूप्स है उनके पास में, और वो 40,000 पर भारी पड़ जाते हैं. तो ये मिलिटरीली भी एस्टैब्लिश करता है, टेक्नोलॉजिकली भी एस्टैब्लिश करता है, और जब ये सारी चीजें एस्टैब्लिश होती है तो सिविलाइजेशनल डिफरेंस समझ में आता है. ठीक है, द ब्रिटिश एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वर एन एडवांस्ड, मोर एडवांस्ड सिविलाइजेशन. ठीक है, ये सिर्फ कोई इंडियन रूलर्स की सिर्फ हार नहीं है ना. ठीक है, the best and most powerful of Indian princes on one side and British on the other, the victory will always be inferred as victory of that civilization. So बक्सर के मामले में हम वो कह सकते हैं. Then consequence में Treaty of Allahabad was signed, वो मेंशन करना पड़ेगा हमको. Treaty of Allahabad ने क्या दिया? बंगाल के ऊपर में बंगाल, बिहार, ओडिशा, दीवानी राइट्स. ठीक है, नवाब just became a titular power. ड्यूअल कंट्रोल एस्टैब्लिश हुआ. सो रिसोर्स ऑफ सच अ मेजर एरिया, सडन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिटिकल एंटिटी, एंड दैट गिव्स देम द बेस टू एक्सपैंड इन अदर एरियाज. दैट गिव्स देम द रिसोर्सेज टू फाइट मोर डिस्टेंट वॉर्स. तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. ठीक है,
पॉइंट समझ में आ गया आप लोग के? लिखेंगे हुसैन? ठीक है, एक ट्राई करते हैं इसको। चलिए लिखिए इसको। ओके, तबरेज एंड अदर्स, यू हैव मेंशनड ऑल ऑफ यू हैव मेंशनड वैलिड पॉइंट्स देयर। ओके तबरेज, गुड वे ऑफ पुटिंग इट। हाँ देखिए, आपकी बात ठीक है, रिवीजन करना तो पड़ेगा ही, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं इसके बेसिस पर कुछ तो पॉइंट्स हम वो कर सकते हैं। उन्हीं पॉइंट्स को अगर हम लिख भी दें तो एटलीस्ट कुछ तो हमारा वो आंसर बनेगा ना। सो आप क्या हो रहा है कि आप प्रेशर ले रहे हो, ठीक है, कि मेरा आंसर एकदम आइडियल या परफेक्ट बनना चाहिए। वो एक प्रोसेस है बेटा, वो धीरे धीरे होगा। अभी इस स्टेज पे जो पता है एटलीस्ट जो हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पे कुछ तो हम लिख लें, है ना। तो वो एक बार वो निकल जाएगा ना सिस्टम में से, वो डर ब्लॉक टूट जाएगा ना, तो उसके बाद में इट विल बी इजी। व्हाट दिस पॉइंट? अभी इस स्टेज पे हम टाइमिंग का वो सब बर्डन ले ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ेगी और मेंस करीब आएगा, देन इट विल बी टाइम बाउंड। जैसे 7 मिनट्स में आपको 10 मार्कर कंप्लीट करना है, 10 मिनट्स के अंदर में, मैक्स 10 मिनट्स में आपको आपका 15 मार्कर कंप्लीट करना है। रादर देन नोइंग मोर, हाउ टू यूज व्हाट यू नो इज अ बिगर skill when it comes to answer writing. Okay, we'll take one more question now. एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती इन द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, हमारे सिलेबस में देयर इज अ पॉइंट मेंशन्ड पर्सनैलिटीज, एंड यूपीएससी हैज आस्क्ड सम क्वेश्चंस व्हिच आर पर्सनैलिटी सेंट्रिक। उसमें दो टाइप के क्वेश्चंस हमको दिखते हैं। एक टाइप है ब्रिटिश पर्सनैलिटीज पर, कर्जन पे सवाल पूछा है, डलहौजी के ऊपर में सवाल पूछा है। अब अगर आया सवाल पर्सनैलिटी, ब्रिटिश पर्सनैलिटी पर, तो एक हम क्या किसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किस पर क्वेश्चन बन सकता है? लिटन इज अ वेरी क्वेश्चन वर्दी पर्सनैलिटी डेफिनेटली, तो लिटन प्रिपेयर करके रख सकते हैं अच्छे से, और पूरा क्वेश्चन 10 मार्कर एटलीस्ट उसके ऊपर में हम लिख सकते हैं, इतना उसका कंटेंट। उतना पीछे शायद ना जाए यूपीएससी। देखिए जनरली यूपीएससी का जो ट्रेंड होता है ना, जिनका कुछ आइडियाज में कंट्रीब्यूशन है, ओके, तो उनके ऊपर में ट्रेंड यूपीएससी का या पूछने का वो ज्यादा होता है। तो ऐसा कोई गवर्नर जनरल, ओके, उसका भी कंट्रीब्यूशन है। विलियम बेंटिक मेरे हिसाब से इज अ वेरी प्रोबेबल पर्सनैलिटी फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। तो ये 2-3 गवर्नर जनरल्स अच्छे से पढ़ के रखें, अगर आ गया क्वेश्चन तो हमारे लिए वो फुल टॉस है, फिर 6 लगाना है उसके ऊपर में। यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है वो दयानंद सरस्वती इन पर पूछा गया है, क्योंकि थोड़ा सा करंट में न्यूज में थे, कुछ उनकी सेंटेनरी या इस तरीके से कुछ एनिवर्सरी थी, तो देयर इज अ लाइक्लीहुड कि यूपीएससी फिर ऐसी चीजों के ऊपर में क्वेश्चन पूछता है। तो पर्सनैलिटी सेंट्रिक, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भी है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी है, और कुछ ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन भी है, तो उस सेंस के अंदर में प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज देयर। तो ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती इन द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की ब्रॉड थीम के अंदर में वी हैव दिस पर्सनैलिटी। तो अगेन थोड़ा सा हमारी एक्सरसाइज अगर हम करें कि क्या वहां पर में ट्रेंड्स हमको नजर आती है इस पर्टिकुलर थीम में, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स में क्या कीवर्ड्स वहां पर में हमको दिखते हैं? ओके, ठीक है, रिजेक्शन ऑफ एलोकेटेड। ओके, ये तो पर्सनैलिटी सेंट्रिक हो गया। थोड़ा सा अगर हम ब्रॉडर अगर देखें, yes, Sanskritization. okay, revivalism, okay, Women empowerment, caste movement. राइट। थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर हम बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, वेस्टर्न मॉडर्न एजुकेशन, एंड दैट लेड टू चैलेंज टू इंडियाज ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। ओके, मेनी ऑफ आवर वीकनेसेस वर एक्सपोज्ड, लीडिंग टू इंट्रोस्पेक्शन बाय इंडियंस, दैट रिजल्टेड इन सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स भी सी। अच्छा, मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूं, ताकि पेरिफेरल एरियाज भी हमारे थोड़े से डिस्कशन में आ जाए, कुछ कीवर्ड्स उसके भी हम टच अपॉन कर लें। तो 2 टाइप की मूवमेंट दिखती है, एक तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट और दूसरी है रिवाइवलिस्ट टाइप ऑफ मूवमेंट। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट क्या करती है, सिर्फ जो इविल्स हैं उसको खत्म करने की कोशिश करती है। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कहते हैं कि देखिए प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये बाद के प्रॉब्लम्स हैं, ओरिजिनली द रिलीजियन स्क्रिप्चर्स डोंट टॉक अबाउट दीज थिंग्स, दीज आर लेटर डे additions. So if we remove these things, these evils, then we go back to the original pristine form of our religion. ठीक है, so Swami Dayanand Saraswati is from that school, right? He is a revivalist. जैसे मुस्लिम्स के अंदर में you see देवबंदी मूवमेंट इज अ रिवाइवलिस्ट काइंड ऑफ अ मूवमेंट, तो वैसे ही यहाँ पर में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कंट्रीब्यूशन हमको नजर आता है। ठीक है, तो अब इस आंसर के अंदर में हम
अबाउट स्वामी दयानंद सरस्वती इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं ब्रीफली, कैसे एक सेंटेंस में हम कवर करें, क्योंकि 10 मार्कर है, सो barely 1 सेंटेंस और मैक्स 2 sentences we have for intro. He was a revivalist reform. Revivalist. ओके ठीक है. हाँ हाँ, आप देखिए ये सारे फैक्ट्स हो गए. इंट्रोडक्शन में हमको क्या हिट करना पड़ेगा, एसेंस, कहीं ना कहीं वो चीज को हमको टच करना होगा. ये डिटेलिंग है, ये शायद बाद में भी आए या बाद में भी उतनी रेलेवेंस ना रखें, लेकिन इंट्रोडक्शन में वी नीड टू हिट द एसेंस. Of the religion he tried to reform this. Okay, so we can say that Swami Dayanand Saraswati is one of the significant socio-religious reformers in India, belonging to the revivalist type of movement. He gave the call of going back to the Vedas and following the religion in its original pristine form, devoid of all the evil practices of the society. Full stop. एक सेंटेंस में हमने थोड़ा सा एसेंस बता दिया. यू कैन पुट इट अक्रॉस इन अ डिफरेंट वे, मुझसे बेहतर आप क्राफ्ट कर पाए वो कोई ये नहीं है, लेकिन हमारा सिर्फ कोशिश क्या है कि 1-2 सेंटेंस में एसेंस को हमको हिट करना है. ठीक है, ये इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं. ठीक है, बॉडी में क्या पॉइंट्स आ सकती हैं. देखिए क्वेश्चन किस पे बात कर रहा है, सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन. ठीक है, सो सोशल रिफॉर्म्स के अंदर में स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कौन कौन से एरियाज में हम बता सकते हैं. ओके, विडो रीमैरिज, ये आपने कहा विडो रीमैरिज तो पहले वाली फेज के अंदर में ना. Education. ओके, देखिए what I'm trying to emphasize is that we must have some structures rather than random firing. We can have some structures, right? So एक तो बात हो सकती है एजुकेशन की, आपने सही कहा. एजुकेशन में हम क्या कह सकते हैं. Combination of Yes, combination of traditional education as well as modern Western style of education. So what does that show? He was not a blind adherent to the past. He was ready to accept what was good from the West, but at the same time firmly rooted in the traditional wisdom of our society. इसमें से क्या बना? His followers created DAV, Dayanand Anglo-Vedic schools, colleges that spread across different parts of India, particularly Punjab, later Haryana, Western UP, in Rajasthan, Gujarat, and even in Bombay Presidency. Education में बड़ा काम हुआ ये. Yes, later Gurukul also, yes, by one of his follower. So एक traditional type का school Gurukul was created and then replicated in many different places. So education में ये हम कह सकते हैं. Social reforms में किस चीज़ की बात हो सकती है. चलिए women उठाया हमने social reforms में, तो women related क्या, equal status की बात की women के लिए. ठीक है, इक्वल स्टेटस, लड़कियों के लिए अलग स्कूल्स भी बनाए इसी टाइप से इन दैट डे एंड एज. सेकेंडली व्हाट कैन बी से, पर्दा सिस्टम को अपोज किया. ठीक है, दैट वुमेन हैव सेम स्टेटस इन द सोसाइटी एज मैन हैज, राइट. तो पर्दा सिस्टम नहीं होना चाहिए वहां पर में. यस, चाइल्ड मैरिज, इसको बहुत स्टॉन्चली अपोज किया. शारदा बिल जो आया है, ठीक है, जो एज ऑफ मैरिज जो लीगली डिसाइड हुआ फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, ये जिन्होंने किया है, ही वॉज आर्य समाजिस्ट. ही वॉज अ क्लोज फॉलोवर ऑफ श्री दयानंद सरस्वती. उनके नाम से ही वो बिल बना, हरबिलास शारदा उनका नाम था, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो बिल, और वो पास होकर के फिर एक बड़ा रिफॉर्म जो है वो महिलाओं के लिए वो इंट्रोड्यूस हुआ है, चाइल्ड मैरिजेस स्टॉप करने के लिए. एटलीस्ट इन दैट डे एंड एज इट वाज डिफिकल्ट, बट नेवरदलेस अ सिग्निफिकेंट लीगल मेजर वाज टेकन. सो इसकी बात कर सकते हैं हम, वुमेन रिलेटेड. देन कास्ट एंड अनटचेबिलिटी. So he felt that all Indians are one, right? And caste system is artificial. These barriers have to be removed. आर्य समाज मंदिर देखिए आज भी उस तरीके से काम करता हुआ आपको दिखता है, right? People who want to marry intercaste, आर्य समाज मंदिर is more than happy to facilitate that, कि differences नहीं होनी चाहिए कास्ट के बेसिस के ऊपर में. Got this point? So education में हम ये कह सकते हैं, social aspects के बारे में हम कास्ट की बात की हमने, women के रिलेटेड हमने बात की, समाज के अंदर में इक्वालिटी एस्टेब्लिश करने की बात की. ठीक है, एक और थोड़ा सा दूसरी साइड भी है इसकी, कंट्रोवर्शियल साइड भी है, कि ब्रिंगिंग बैक पीपल टू द हिंदू फोल्ड, शुद्धि मूवमेंट, ये भी जो है वो आर्य समाज के थॉट में से ही निकला हुआ है. देन काउ प्रोटेक्शन ऑल्सो वॉज अ सिग्निफिकेंट मेजर एट दैट टाइम, एंड बैक देन इट हैड क्रिएटेड सम ये क्लैशेस ऑल्सो. तो ये सारी चीजें भी उसके अंदर में हम ये टच अपॉन कर सकते हैं. देन टुवर्ड्स द एंड इन द कंक्लूजन व्हाट कैन वी से, दैट हिज कंट्रीब्यूशन enabled to reduce the barriers and create a feeling of being part of one single nation. He was not a hardcore religious fundamentalist as such. He was ready to accept modernity also. He was ready to accept the problems facing before the nation and the solutions for that. ये भी चीज हम वहां पर में मेंशन कर सकते हैं, और एक 10 मार्कर आंसर इस तरीके से हम कंक्लूड कर सकते हैं. Got the idea? Sufficient points to write.
150 वर्ड्स, ठीक है। देखिए इंट्रोडक्शन ही अगर हम लिख लेंगे अच्छे से तो उसमें ही हमारे 20 वर्ड्स चले गए। अच्छा सा कंक्लूजन समराइज कर दिया, उसमें हमारे 20 वर्ड्स चले गए। लिखने का स्पेस कंटेंट का हमारे पास में कितना है, 100 से 120 वर्ड्स का है मैक्स। वो 120 वर्ड्स के अंदर में वी नीड अबाउट 6 to 7 गुड क्वालिटी पॉइंट्स एंड आवर आंसर इज 10 मार्कर आंसर इज डन। बस समझ में नहीं आपके, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट अ टास्क। हिस्ट्री में अगर आपको फ्लो समझ में आया है और हर एज की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आई है तो आप बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। बस आपको लिंकेज एस्टेब्लिश करना है। गॉट दिस पॉइंट? ठीक है। तो आज मैंने 2 आवर्स का हमारा सेशन था। आई हैव ऑलरेडी एक्सीडेड ओवर शॉट द टाइम एंड यू हैड अ earlier session also. So there are 2 more questions that remain. What you can do is, if you like, you can sit here and write the answers also, and I'll be happy to wait here for you. And if you want me to assess it, we'll assess it also. Or if you want, you can write the answers and get them tomorrow. And if you want, I can have a look at them. Those students who are attending online and they also want to share the answers with me, feel free to do that. You can send it to me on my email ID. I'll just type my mail here. This is how we are going to go about with our exercise, taking up different themes of history and covering them through 7 answers every day. अब आपको थोड़ा सा शुरुआत में वक्त ज़्यादा लग रहा है आंसर्स में, बट एज वी गो अलॉन्ग तो आपका टाइम क्रंच होगा and we will be able to complete the answers here in the class itself. 2.5 hours की क्लास में we'll do that. You found this to be effective, helpful? Yes, very helpful? Okay, that's great. ठीक है, so we meet tomorrow again, same time, 5 PM. और हम कल इसी तरीके से और आंसर्स कंटिन्यू करेंगे। जाते जाते आप इसके मॉडल आंसर्स भी लेकर जा सकते हैं, बट डोंट लुक अप मॉडल आंसर्स डायरेक्टली। ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ एंड देन आफ्टर दैट यू कैन कंपेयर इट विद द मॉडल आंसर्स। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन दिस सेशन। हाउ मेनी ऑफ यू वर देयर फॉर द एसे सेशन ऑल्सो? 2-3 of you, okay. Essay lectures will start later. They are starting from 23rd or 24th, I think. So after the ethics classes are over, then we'll do essay. Time period is specific, some Yes. intro and all. Where can I? Time period specific? I didn't get you. Time period is specific, some intro, like. Right. हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कार मॉडल, ठीक है। सो कॉन्फ्लिक्ट कंडीशंस, कॉन्फ्लिक्ट, एक्शन, रिजल्ट हम क्लास में बैठ के उसको करेंगे। ओके, ऐसे स्टोरीज, केस स्टडीज जो कंस्ट्रक्ट करना है ना, हम उसको करेंगे बाकायदा बैठ के। अगर आपने वो बुकलेट देखा है मेरा, तो मैंने 9 स्टेप्स दिए हैं ऐसे राइटिंग की वर्कशीट में। तो वो 9 स्टेप्स हम प्रीवियस ईयर्स के टॉपिक्स लेकर के क्लास में करेंगे, सो दैट यू हैव फर्स्ट हैंड आइडिया अबाउट इट। सो मेनी ऑफ दीज थिंग्स विल बी शेयर्ड इन द क्लास, डोंट वरी। ओके, यस शुभम, विल डू दैट। सो वी हैव योर, एक सेकंड, we have your email IDs, so I'll just ask the team to send it over to you, or maybe if they have some downloadable section, I'll have it shared over there. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।